Hello. Good afternoon to all. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon, sir. Thank you. Thank you. Let us start with a very beautiful thing for you. It is a television interview. Uh, Mrs. Jaiswal is the CEO of a well-known advertising firm. Ms. Bindu is a TV reporter in pairs. Take on the roles of Mr. Jaiswal and Ms. Bindu and practice this interview. Listen to the dialogue to get the right stress and intonation. Good evening, viewers. Welcome to the business show. We have with us a very important guest this evening. It is none other than Mr. Jaiswal, CEO of Ozilsip and the well-known advertising firm. Good evening, Mr. Jaiswal. Let me begin by thanking you for spending time with us. Could you tell our viewers when you started this firm? Tell us something about the origin of the organization. Well, it all began in a very small way. When my brother and I decided to set up a printing press, we did our work well and we began to get orders to print advertisements. That was the beginning. It was printing advertisements and not creating advertisements that started us off. It's interesting. So, what made you enter the world of advertising? We started getting involved in what we printed. Then we wondered why should we not design the advertisements? I still remember that it was an advertisement for biscuits, something simple yet something that reached every home. That advertisement was a success. It, it really reached out. That's great. But today, we see you as the head of a firm that is synonymous with everything in advertising, whether it is in the print or visual media. How did it happen? It just happened. We got a good creative team together and we set off an advertising firm. Perhaps it was the team headed by Mr. Tiwari that really stole the show. The people just loved it and there was no turning back. Viewers, let us take a quick break and we watch two popular advertisements designed by Mr. Jaiswal. Wasn't that really spellbinding? Uh, all of us really love watching those advertisements over and over again. Mr. Jaiswal, yours is really a success story. Since since we are running short of time, would you like to give our viewers a special message? Yes, ours is a success story, but success doesn't come without effort. Hard work, originality, good teamwork, and a desire to do your best will really go a long way to make you the number one company. You see, I'm repeating Mr. Jaiswal's statement. Yes, ours is a success story, but success doesn't come without effort. Hard work, originality, good teamwork, and a desire to do your best will really go a long way to make you the number one company. That's a wonderful message for all of us, whether wherever we are, whatever we do. Thank you, Mr. Jaswal, and thank you, viewers. See you again on our business show next week. It's a formality, and my point is to discuss you with this particular television interview about Mr. Jaiswal and Ms. Bindu to show you that the questions. But the thing is, the message is that the message that Mr. Jaiswal put you forward is remember that you can be a success, but success doesn't come without effort, hard work, originality, good teamwork, and a desire to do your best. This thing, as I told you yesterday, that this book is designed for your life skill. It will not be for the purpose of reading and forgetting the things or getting good notes or getting good marks. So you see, the point is, whenever or wherever we are,
if you want to succeed, the point is first of all thing is you have to you have to go for hard work, originality. That is one thing that nobody can teach you. You have to think it for yourself, and good teamwork. You can't always see that single-handedly you can do a lot of things, but the thing is we should rely on a good team and a desire to do your best. अगर आप लोग खुद देखो, जैसे आप अगर कोशिश नहीं करते हो कि मुझे आगे पहुंचना है, ये कहीं बुक से नहीं मिलेगा कि मुझे आगे पहुंचना है, कोई आपको धकेलेगा, मतलब बोलेगा कि आप चलो इस रास्ते पे चलो, दैट डजंट मीन. व्हेन यू फाइंड इट फॉर योरसेल्फ दैट मुझे ये करना है और आगे ऐसे बढ़ना है, तो यू विल फाइंड पीपल अराउंड यू, द एनवायरनमेंट इज सपोर्टिंग यू. आपको वैसे ही मिल जाएगा. आप जैसे the great proverb goes like this: the journey of 1,000 miles starts not with a single step. आप खड़े रहोगे, 1,000 माइल चलना पड़ेगा, 1,000 मील चल नहीं पाएंगे, कैसे चलेंगे? पहला ही पैर पहला जो फुट है, आप इफ यू आर नॉट गोइंग टू पुट इट, then how can you go for the second foot, then third feet, then fourth, then it goes up, and one day you will automatically find that you are on the top. The point is, you must have the enthusiasm, you must have the eagerness, you must have a desire to succeed. So success is not achieved overnight. Mr. Jaiswal is of the view that success, ours is a success story, but success doesn't come without effort, hard work, originality, good teamwork, and a desire to do your best. वैसे काम चलाने के लिए नहीं बोल रहे हैं वो, you have to give your best. जैसे मैं कल बात कर रहा था कि पढ़ो, कैसे पढ़ो, जैसे कि कल एग्जाम है. हर दिन का पढ़ाई जो है, आप सोच लेते हैं कि आज तो पढ़ाई, आज तो एग्जाम नहीं है, आज संडे है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, बट डू इट इन ए रेगुलर बेसिस. दैट इज द थिंग दैट विल टेक यू टुवर्ड्स a great aim, fulfilling a great goal, with achieving success in your life. So now our first thing, today's discussion rather, it comes in between. So using body language effectively. So communication, जैसे मैं फर्स्ट 135 जब पढ़ा रहा था तब बोल रहा था, फिर आज भी बोल देता हूँ कि तो कम्युनिकेशन होता है, इट्स ए शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू. कम्युनिकेशन का जैसे मतलब हम लोग निकाल लेते हैं कि कथावार्ता, মানে দুইজনଙ୍କ ভিতরে কথাবার্তা হবে. বেসিক্যালি যে কথাবার্তা আমি হଉଛି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟି ଯେତିକି থিম ବେସ୍ ନୁହେଁ, ସେତିକି ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ବା ଯୋଉଠି ଭର୍ବ ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ. और हमें जो कम्युनिकेशन करूचे, कथावार्ता करूचे, कन्वर्सेशन, हम लोगों में जो बातचीत हो रहा है, मतलब दो साइड होता है, कोई लिसनर होता है, हम स्पीकर होते हैं. तो स्पीकर जो बोलता है, लिसनर वही सुनता है. तो आप लोगों को लगता है, हर किसी को लगता है, जैसे आपका बुक भी से लिखता है, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल टेक्स प्लेस इन वेरियस वेज. मोस्ट पीपल थिंक दैट the most popular way of communication is by speaking, but the thing is, what they do not know is that actual verbal communication accounts for only 10% of the message. जो मैसेज हम देना चाहते हैं, वो मैसेज के साथ आप देखो कि 10%, ओनली 10% आर वर्बल. बाकी बहुत सारे चीज जैसे होता है नॉन वर्बल होता है. एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होता है, जहां हम वर्ब यूज नहीं करते हैं. तो वर्ब यूज नहीं करते मतलब जहां जिसके साथ बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं. क्लास में कोई बच्चे सुनते हैं, एगरली सुनते हैं, फॉरवर्ड लीन जिसको बोलते हैं, आगे की तरफ झुकते हुए सुनना, मीन्स दैट शोज यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज बीइंग टॉट. कोई कोई पीछे यार्निंग कर लेते हैं, जो हाई मारना जैसे. तो यार्निंग के साथ मतलब कि यू फील बोर, जो जितना मजा आपको मिलना चाहिए आप नहीं ले पा रहे हो. और नहीं तो घड़ी की तरफ बार बार देखना कि कब खत्म होगा. दिमाग किसी दूसरी तरफ, झरोके के विंडोज है क्लासरूम में, तो विंडोज की तरफ कोई देख रहा है बार बार. तो इसका मतलब होता है ही इज नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ इंटरेस्ट दैट ही शुड हैव टेकन फ्रॉम द क्लास. So the point is, very often words transmitted verbally do not reflect what people really feel. तो आपको कहीं बोलने के लिए बोला जाता है, तो डू यू फील, ऑल ऑफ यू नाउ, अगर मैं पूछ लेता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है मुझे मैं जो बोल रहा हूँ. बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है, लेकिन क्या होता है, सब बताते हैं हाँ हाँ सर सब ठीक है. तो ऐसे मुंह में जो बोलते हैं इसमें नहीं होता है. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आजकल ये ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है. तो इंटरव्यूज में आप लोगों को वो लोग जब बुलाते हैं, मतलब
So different type of interviews in the course succeeding part of our classes. We will go for face-to-face interviews, then telephoning interview through telephone, group discussion inside the interviews. जो आजकल का ट्रेंड हो रहा है, आप लोगों को पूरा मतलब कि पूरा इक्विप करके इग्नो आप लोगों को भेजने वाला है। अगर जब सिनारियो पे आप जब जाओगे कंप्लीट करके, मतलब तो आप इग्नो को दोष दे नहीं पाओगे कि कोर्स में ऐसे कुछ पढ़ाया नहीं गया था। इसमें जो सक्सीडिंग पार्ट है, आज जो दो पार्ट में बनाया, आज डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, ये एक बॉडी लैंग्वेज है कि कैसे दूसरे के साथ अगर बात करें तो अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना आई कांटेक्ट कैसे करें, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रहेगा। जो आप मुंडी जब हिलाते हो तो कब हिलाना कब नहीं हिलाना, मुंडी हिलाने का भी मतलब होता है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। कभी मुंडी वैसे ही कोई हिला सकता है एब्सेंट माइंडेडली, आप बोल सकते हो कि ये मेरा आदत है मैं हिला देता हूँ, लेकिन अगर वो आदमी जो सामने वाला है वो अगर जानता है कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत उसको पता है, वो जान लेगा कि यू आर नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ इंटरेस्ट दैट यू शुड हैव टेकन फ्रॉम द कन्वर्सेशन। ये होता है। तो क्रॉस लेग्ड, हम जैसे मैं कल बात कर रहा था कि आप इंटरव्यू में जाओगे क्रॉस लेग्ड बैठ जाओगे, तो आप वहां अगर क्रॉस लेग्ड बैठ जाते हो, दैट मीन्स यू आर लैकिंग इन सम सॉर्ट ऑफ सीरियसनेस। और अपने जो अपने चीक पाम पे ऐसे करके जो बैठना मतलब होता है, तो ये होता है कि यू आर नॉट कीन। तो आपका जो ये जो बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉडी लैंग्वेज अनकॉन्शियसली होता है। स्क्रेचिंग ऑफ हेड, गल्पिंग, ये सब क्या होता है, अनकॉन्शियसली हो जाता है। हम कॉन्शियसली वी कैन डू दैट। हमें जानबूझ के, अगर हम जानबूझ के हमारे लैंग्वेज को पॉलिश कर सकते हैं। मन में किसी दूसरे आदमी के लिए सोच सकते हैं बहुत बदमाश है, लेकिन सामने जो सर नमस्कार कैसे हैं, बढ़िया। सो द पॉइंट इज वर्ड्स कैन डिसीव, बट जो एक्सप्रेशन होता है, जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होता है, दैट यू कैन डिसीव बिकॉज मोस्ट पार्ट दैट इज अनकॉन्शियसली दैट हैज बीन डन। So that is why it is written, the behavioralists, those who do with the language, those who research with the language, they say that maximum of our talk, when we are speaking, the maximum of our talk is 5 to 10% is done verbally, and other rest part is done non-verbally. And non-verbally, that means our eye contact, our facial expression, our yearning, our hand expression, our total body is involved in the process of communication while we are talking. And some set of examples are there, and I may read you out. Brisk erect walk, when you erect मतलब stand still position में, straight position में आप अगर चलते हो, और brisk थोड़ा स्पीड में भी चलते हो, तो कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये दिखाता है, ये बॉडी एक्सप्रेशन। लेकिन जब जाते हो स्टैगरिंग, आप अगर इंटरव्यू रूम को जब घुसते हो, तब अगर जाओगे, जैसे जाओगे घसीटते हुए, मतलब स्टैंपिंग योर फीट, और ऐसे मतलब जो स्टेप के साथ, जैसे पूरा स्टैंड स्टिल मतलब इरेक्ट पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन, अपने आप को स्ट्रेट होल्ड करके अगर अंदर की तरफ जाओगे, नहीं तो झुका हुआ कान के साथ अगर जाओगे, ब्रूडिंग सोल्जर्स जैसे हंस सोल्जर्स, और फेस डाउन, नेक डाउन, you are not having a direct eye contact with the listener, those who are asking you the questions. When you say good morning या good afternoon, पैनल्स, तो जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं, उनको अगर साफ डायरेक्टली आप देख नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नर्वस, देयर इज अ फियर इन योर माइंड, समवेयर यू मे लुक कॉन्फिडेंट, आर यू नर्वस, दे मे आस्क यू, आर यू नर्वस, आर यू फीलिंग ऑकवर्ड, नो सर इट्स ओके, आई एम फाइन सर, but something is itching under your collar, you are worried about, सपोज आप वही डर रहे हो कि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आपको ना आए। बहुत बार होता है, बहुत बच्चों को हिस्ट्री बहुत प्रॉब्लम में होता है। तो मुझे पता है जैसे कैसे होता है, एक कोई बढ़िया सा बता रहा था, कोई बच्चा मैंने इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है, और इंटरव्यू में क्वेश्चन आया, थ्रो सम लाइट ऑन सिपाही म्यूटिनी। तो वो सिपाही म्यूटिनी जानता है, हर कोई जानते हैं सिपाही म्यूटिनी। वो लड़का बोलते बोलते बोल रहा है, बोलते बोलते बीच में वो जो क्वेश्चनर थे, जो आस्किंग वाला थे, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको, वो थोड़ा बोल रहे थे ब्रावो गो ऑन। बच्चा देखो इतना नर्वस था कि गो ऑन के जगह वो गो आउट समझा और उठ के निकल गया। समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम क्या है? आप नर्वस नहीं हो, ही इज सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह के बारे में बोलना, तो रिवोल्यूशन मेड बाय द सिपाही मंगल पांडे, और आजकल तो मंगल पांडे के ऊपर मूवी भी बन गया, आप लोग वो देख रहे होंगे। तो वो बता रहा था, बढ़िया सा बता रहा था, एंड जैसे ही वो निकल गया,
जो थे वो पियोन को भेजे कि अरे वो लड़का क्यों चला गया, उसको बोलो क्यों गया पूछो तो। वो गया, पियोन दौड़ता हुआ बोला कि सर पूछ रहे हैं आप क्यों भाग क्यों आए। क्यों सर तो बोले ना गो आउट। अरे गो ऑन बोले ना, गो आउट बोले। मतलब पियोन को सुनाई में दिया कि गो ऑन बोला गया था उसको, गो ऑन। तो वो लड़का इस ये था, इतना नर्वस था, वो वहीं पे रो पड़ा। बोला कि अरे मैंने इतना नर्वस था कि गो ऑन को गो आउट समझ रहे। तो नर्वस, देखो आंसर तो अच्छा दे रहा था, इसलिए तो वो टीचर बोले कि ब्रावो गो ऑन। तो वो जो ब्रावो का मतलब नहीं समझा, फिर गो ऑन इतना नर्वस था कि गो ऑन की जगह उसको गो आउट जैसे लगा, और वो एटिकेट जगह बोला कि थैंक यू बोला और निकल गया। देखो कॉन्शियसली एटिकेट को मानते हुए गया। लेकिन इंटरव्यू में ऐसे होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि अपना कामनेस जो है हम कैरी नहीं कर पाते हैं, हमारा नर्वसनेस दिख जाता है कभी कभी। ऐसे नहीं होता है, हमें थोड़ा हमें ऐसे बताया गया है कि नर्वसनेस कैसे पता चलेगा, आपका पैर कांपेगा, हाथ थरथराएगा, जैसे यू विल बी गल्पिंग डाउन योर, ऐसे मतलब जो आवाज निकलेगा मुंह से और गले से, मतलब ऐसे आवाज निकालना, उसके बाद बोलना good morning sir, what I want to say is um, now so once you start like this, that means you are nervous, that is the thing. But consciously you may hide. If someone is asking you that are you nervous, you will simply go on denying the fact 1,000 times that you are not nervous, you are not getting worried, you are not feared. But सच में फियर होता है, इनर फियर होता है। तो इसलिए क्या होता है, आपको बॉडी लैंग्वेज को आपको मतलब अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा। तो कैसे होता है ये सब, कैसे आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ के समझाया था। तो पहले जो पढ़ा था वो एक टेलीविजन इंटरव्यू था, एक टेलीविजन टीवी उपस्थापिका। तो टीवी का जो होस्ट था, और होस्ट और एक सीनियर पर्सन के साथ वो बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे जो बात, क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे। वो बोलते हैं क्लियर, क्योंकि आप एक पड़ाव पर पहुंच जाने के बाद क्या होता है, आपके पास बहुत कुछ बोलने के लिए हो जाता है। लेकिन जैसे आप लोग हो, या जैसे हम बात कर रहे हैं कि यू आर द बिगिनर्स, आप अभी शुरू भी नहीं किए हो, ये कोर्स कंप्लीट करोगे तब जाके हम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल जैसे होता है बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए ग्रेजुएशन एक लास्ट क्वालिफिकेशन का यार्डस्टिक या लास्ट लाइन होता है। और उसके बाद आप जब सिनारियो पे जाओगे, तो जब सिनारियो पे जाओगे तब अपने आप को क्या करना, मतलब अपने आप का जो टैलेंट है, अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है, अपने आप का जो मतलब जो ख्वाहिश टू गेट ए गुड जॉब। तो गुड जॉब पाने के लिए खाली पढ़ना या अच्छे मार्क्स ले आना या रिटन टेस्ट में अच्छे कर लेना, ये सब कुछ नहीं है। उसके साथ क्या होता है कि एक इंटरव्यू, एक वाइवा जो होता है, इसी में अपने आप को काबिलियत, आपका काबिलियत जो है, कॉन्फिडेंस जो है, कॉम्पिटेंसी, तो 3C कल हम बात कर रहे थे कि कॉम्पिटेंसी, कामनेस, ये दोनों जरूरी होता है। पहले कॉम्पिटेंसी आप में रहना चाहिए, देन कामनेस रहना चाहिए, देन क्रिएटिविटी। दैट पॉइंट मिस्टर जायसवाल पॉइंटेड आउट, दैट ओरिजिनलिटी, आप ओरिजिनली कैसे सोच रहे हो। बुक का बात तो सब हर कोई बोल सकता है, बुक का बात बुक में लिखा है, आप क्या है, मैं एक बुक पकड़ा हूँ, पढ़ लेता हूँ, आपके पास अगर वो बुक है, आप सुन रहे हैं, हाँ सर अभी पेज नंबर 6 में चल रहे हैं, अभी पेज नंबर 10 में चल रहे हैं, जो जो लाइंस पढ़ रहे हैं वो इंपोर्टेंट लाइन है। और आप में से कोई अगर थोड़ा तेज वाला कोई लड़का या लड़की बैठी है, तो वो क्या करता है, तो अंडरलाइन कर लेता है, मैं जो पॉइंट को इंपोर्टेंट बोलूंगा या जो जिसको रिपीट करूंगा वो उसको इंपोर्टेंट बोल के लिख लेगा। लेकिन इसमें चल के ये आगे चल के तो ये बुक के साथ नहीं कर पाएंगे ना। इंटरव्यू जाएंगे, ये बुक साथ में थोड़ी ना पकड़ के जाएंगे कि नॉन वर्बल क्लूज क्या लिखा था, कि कैसे बैठना है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में क्रॉस लेग नहीं बैठना, अपना जो पाम है उसको नीचे की तरफ करके, मतलब जांघे पे अपने थाई पे रख के स्ट्रेट पोजीशन में बैठना, जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है उसको डायरेक्टली आंख में आंख रख के बात करना, दैट शोज कॉन्फिडेंस लेवल। That doesn't mean that you may lack in some talent, but if your smartness is there, if your competency is there, if your originality is there, if you actually in an interview they actually ask you some odd questions, so likewise you may get hot, but you may not ask that you are not entitled to ask even. At this point, I may give you one example. One retired IS is there. He's my relative. He says when he was rather taken for his viva, a question was there.
टेल मी इन वन लाइन द समरी ऑफ भगवद गीता। तो टाइटल है, वो मिश्रा जी हैं, प्रसन्न मिश्रा। वो बोले मिश्रा जी आप तो ब्राह्मण हैं। बोला हाँ ब्राह्मण हूं। तो आप गीता पढ़े हैं ना? बोला हाँ गीता पढ़ा हूँ, बहुत बार पढ़ा हूँ। तो अच्छा एक सेंटेंस में टेल मी द एसेंस ऑफ गीता, भगवद गीता के बारे में एक ही सेंटेंस में बोलिए। तो वो थोड़ा गीता और कलेक्टर, वो बोले डायरेक्टली बोल दिए वो इंटरव्यू बोर्ड को। वो थोड़ा ये थे, मतलब बोले कि सर डू यू थिंक कलेक्टर रियली नीड्स टू नो द गीता? क्वेश्चन वाला पूछने वाला था, वो पूछा क्यों? कलेक्टर होने से गीता पढ़ने के लिए कोई मना करता है कि कलेक्टर है गीता नहीं पढ़ेगा, कलेक्टर है बाइबल नहीं पढ़ेगा, कलेक्टर है इसलिए नमाज नहीं करेगा? या अरे वो बात अलग है। उसे खाली आप गीता जानते हो ना, आप गीता जानते हो, आप बोले कि गीता जानते हो, आप नहीं जानते बोलते तो और कुछ बात पूछा जाता। तो बोले ठीक है, बोलो तो गीता अगर पढ़े हो तो गीता के वन लाइन समरी। अभी गीता 700 श्लोक का होता है, 700 श्लोक अच्छे से गीता रे। तो ये भाविले बर्तन कोटे कहबी, एबे हुए तो बुक्स मिलगलानी, ताको समय सेतकी बुक्स नथिला। तो से आम समय एबे मिललानी। मु देखली से दिन गोटे जगह लिखा है कोन 21 श्लोकी गीता, गोटे श्लोक रे सारा गीता अच्छी से सब कथा कहले चली जिवो। जदी मु कहबो चाहूची जो कथाटी आपन मन को कहबो चाहूची सेतरे हला से पचारले जे जने कलेक्टर गीता जानिबा कोन पई जरूरी, जानिबा जरूरी कि से कहले नै सब कथा जने कलेक्टर सब जानि पारे। जदी कोठी गोटे माने गोटे मंदिर वाला डाकुचते, गोटे मंदिर रो इनागुरेशन होउची, कलेक्टर को से डाकिले एंड इज इट ऑलवेज दैट यू विल ऑलवेज गो फॉर ए रिटन स्पीच? किसी से दूसरों से लिख के ले जाओगे और वहां जाके जैसे पेरेड जैसे रिपीटिंग आउट, किसी को पढ़ लेना, तो देख के भाषण पढ़ लेना। इसमें क्या होता है, क्लैपिंग्स नहीं मिलेगा। पेपर देख के पढ़ने से जितना बढ़िया कोर्स होता है तो भी आपको क्लैपिंग्स नहीं मिलेगा। आप थोड़ा रुक रुक के बात करो, अपने मन से बात करो, थोड़ा एग्जाम्पल आपके जैसे कॉमन प्लेस एग्जाम्पल्स जैसे है वैसे एग्जाम्पल्स दे दो, यू विल फाइंड चलता है। जैसे मैं पूरा डायहार्ड एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। परीक्षा पे चर्चा कुछ 2 साल 3 साल हो रहा है, चल रहा है, 2 साल मोदी जी चला रहे हैं। जो बात बोल रहे हैं आप में से अगर कोई सुना है तो वही बात बोल रहे हैं कि परीक्षा में नर्वस नहीं होना, जो होता है होता है। तो एग्जाम इज नॉट द फाइनल, जिंदगी का सब कुछ नहीं होता है एग्जाम। एग्जाम एक पड़ाव जैसा होता है, एक चैप्टर जैसा होता है, और इसको यू कैन ओवरकम बाय सिंपली कॉन्फिडेंस। आप अपने प्रिपरेशन के साथ जाओ, जितना होता है, नहीं होता है तो इतना भी दुखी मत हो कि ये एक ही एग्जाम नहीं है, जिंदगी में बहुत बार हम एग्जाम देंगे। ये बात आपको पढ़ाया भी जाता है, लेकिन वही बोलने के लिए एक बड़ा सा पेंडल बना के और लोग सुनते हैं भी। और जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो स्पीच के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां 2000 बच्चे थे, उनके गार्डियंस थे, टीचर लोग भी थे, मतलब तो सबको पता है यही चीज। जैसे गांधी जी के साथ ऐसा हुआ कि किसी एक बूढ़े आदमी ने आया, बोला कि गांधी जी आप मेरे ये जो है पोता है उसको बोल दीजिए कि चीनी छोड़ दी, चीनी मत खाए, कम खाए चीनी, मतलब हम बोल बोल के थक गए, शायद आप मुझे लग रहा है कि आप अगर बोलेंगे तो हो जाएगा। तो गांधी 2-4 दिन देखी लेते उसे पिलाऊ कहले काली आस 15 डेज लग गला। एंड 15 डेज पर गांधी से पिलाऊ कौन कहले बाबू रे चीनी खाइबा भल नुहे, आ चीनी खाइब नहीं। तो से बुढ़ी एथर कहला अरे से कथा तो आमे केते दिन कहूछु, आपण से कथाटा कहया पे 15 दिन लगेली कि? तो गांधी कहले नाही मु से कथा नुहे, मु जेतबळे तमे आसिलो प्रथमे से राती को धरि करी, से तो छोट पिलाटा, मु सेतबळे जाय भी चीनी खाउथली। तो तमे जो दिन प्रथमे कहले पिला को मना करो चीनी खाइबो नै, मु से दिन टू चीनी खाइबा छाड़ीबा आरंभ कली, एवं गतकाली मु पूरा चीनी छाड़ी परली। मु जति 60-62 वर्ष रे कथाटी करि परुची, से पिला छोट अछि, से करि परिबो। एंड दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, but that makes him the Mahatma. Someone wrote that वो महात्मा इसलिए हैं कि there is no gap between his speech and his action. उसके एक्शन और उनके स्पीच, हमारे तो बहुत बार होता है, हम मुंह में कुछ बोलते हैं, दिमाग में और कुछ सोचते हैं। तो गांधी जी का ऐसा नहीं होता था। तो गांधी जी बोले कि छोटे बच्चा, हम कोई अगर हमें पूछता है कि सर हमारे लिए कुछ बता दीजिए 2-4 लाइन, एडवाइस देने के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं, क्योंकि एडवाइस देना सबसे आसान काम होता है। दुनिया का सबसे आसान काम अगर कुछ है तो वो है एडवाइस करना किसी को। अरे ऐसे क्या है, ऐसे पढ़ लो हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ने के लिए बैठता है उसको पता है कि पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी नींद कभी आ जाता है, एग्जाम के बारे में पता नहीं है, कैसे क्वेश्चन आएगा पता नहीं है, कौन कॉपी चेक कौन करेगा वो भी पता नहीं है, क्या लिखेंगे वो भी पता नहीं है।
तो बहुत सारे चीज होता है जो प्रैक्टिकली करता है, लेकिन किसी के पास आता है मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, एग्जाम का टेंशन क्या है, क्वेश्चन देखोगे जो आएगा करोगे, जो नहीं आएगा छोड़ दोगे, और क्या? तो छोड़ देने से चलेगा, हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो एग्जामिनी है वो तो जो पढ़ रहा है, जो एक परीक्षार्थी है, उसको अगर बोलो कि छोड़ दो, वो बोला छोड़ देगा तो कैसे होगा, पूरा 100 मार्क लिख के पास नहीं कर पाता हूँ, छोड़ दूंगा 30-40 मार्क का तो कैसे लिख के कैसे पास करूंगा, लेकिन ही कैंट आस्क, वो पूछ नहीं पाएगा ऐसे क्वेश्चन। तो बात ये है कि हम बात क्या कर रहे थे कि इंटरव्यू में भी जब भी जाते हैं, जब सिनेरियो पे जब जाते हैं, मतलब बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे थे कि अपने बॉडी लैंग्वेज से आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, मतलब तो आई कांटेक्ट इसलिए बोलते हैं कि जो जो झूठ बोलता है, हम क्या करते हैं उसको, मेरे आंख से आंख रख के बात करो, आखिर आंखें मिसेई कह, जो मैंने टिके भूल करछन्ति, किछि गलती काम करछन्ति, से सीधा आखिर आंखें मिसेई कहि पारंते नै, सेमति विश्वास करा जाय, से गोटे नॉन वर्बल क्लू, से नॉन वर्बल क्लू रे जणे पॉलीग्राफ टेस्ट दबा दरकार नै, डायरेक्टली फेस रे चाहि करी कह, एमति करिनु, सेमति कहि पारंते नै, सिद्धि पे धरा पड़ जाय, सिद्धि पे समझ कोंती जे डायरेक्ट आखिर आखिर रखि करी कह, माने साखी मिसेई करी कथा हो, जे किछि गलती करछि से आखिर मिसेई करी कहि पारबो नै, दैट इज द थिंग। सो नॉन वर्बली यू हैव टू, बहुत बार ऐसे होता है हम क्या करते हैं अपने आप अनायास, जब कोई सीनियर के साथ हम बात करते हैं तो हाथ जो होता है, तो वो पाम के दो पाम जो ऐसे हाथ ऐसे ऐसे हम करना शुरू कर देते हैं अपने आप में, जो हाथ मलिबा जो कहूँ आम आम ये ओडिया जमी कहूँ साहित्य भाषा जो हाथ मलिबा माने हाथ ये होगा कि आंगुले पॉकेट रे ये पूरे हाथ पूरे गोटे वयस्क लोक संगे कथा हो, इट्स एन इनसल्टिंग बिहेवियर, इनसल्टिंग बॉडी लैंग्वेज, दैट इज टू से। तो ये कथाटी आम कौन न थाए, आमको अनकॉन्शियस आम अभ्यास अच्छी, आम हाथटा पकेट रे पुरईचु कथा हो, सीनियर हेलेनी कौन अच्छे से कौन अच्छी किसी ना किंतु बहुत कथा अच्छी। सो नॉन वर्बल कॉन्सेप्ट रे तो आपन फर्स्ट इंप्रेशन जो लोकटी हबो जे आपन केमती आछंती, केते नर्वस अछंती, केते कॉन्फिडेंट अछंती, हां डोंट misinterpret it as overconfidence. I'm not speaking about I'm speaking about confidence. I'm not speaking about overconfidence. Overconfidence आपको हर बार मार्क देके जाएगा, कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग आपको ओवर कॉन्फिडेंस का बात ऐसा है। मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल, मेरा खुद का एग्जांपल दे सकता हूं। मैं अपने हमारे स्कूल का एक लड़का था जो एक इंटरव्यू बोर्ड में बैठा था, वो जैसे पैनल्स आते हैं जो क्या लेते हैं कैंपस के लिए लेके जाते हैं, तो ऐसे था वो लड़का, उसको थोड़ा बहुत मालूम था, वो आया बाहर, उसका काम जब खत्म हो गया वो बाहर बैठा और सबको बताता गया, अरे इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, वहां जाओ, वो लोग क्या पूछेंगे, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में पूछ रहे हैं, अपना नाम वाम बता देना, पिताजी के बारे में बता देना, क्या कर रहे हो बता देना, कौन से क्लास में हो, मैंने कौन से ब्रांच में हो ये बता देना, क्या पढ़ रहे हो बता देना, कौन से ईयर, और इसके बाद क्या पूछेंगे, एक दो बात बताएंगे, जो जो मालूम है वो बता देना। अगर पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे, जैसे मुझे पूछे पॉलिटिक्स के बारे में, तो बोल देना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन पॉलिटिक्स। सो सेइंग इट इन ए पोलाइट वे इज समवॉट डिफरेंट। और उसको ये पता था, देखो ये बच्चा क्या सोचा कि वो जो इंटरव्यू वाले हैं सब इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर रहे हैं, थोड़ी ना उड़िया उनको समझ में आएगा, ऐसे बोल के वो उड़िया में बाकी बच्चों को ऐसे समझा रहा था। मतलब बाहर आसिक बसिला आराम से सब पिला अरे एमती पचारे कहीं एमती हो पचारे से पचारे एमती कहबो सेमती कहबो। किसी समय बाद से जो हेड जी थिले भितरे से आसिले, वो अच्छे से पैनल रे से बाहर को आसिले, से पिला डाकिले कहले कौन पे एमती कहूछ समस्त कौन निजक बेसी ये जानू पूरा सीधा ओडिया रे तो केमती कहले कौन निजको कौन भाबिकरी तू एठी बतौछु समस्त ए कथा, तोते जो क्वेश्चन पचरा गला कौन समस्त से क्वेश्चन पचरा जिवो। देख जदि तू सिलेक्ट भी हेई थाउ ताहले तोते नेबी नहीं एठी पई बिकॉज़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, अपने आप को कैसे संभालना है आपको ये पता नहीं है। तो आप अगर किसी के लिए काम करना जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाओगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में आप अपना जो सीक्रेट है वो आप रख नहीं पाओगे। तो इसी कारण बस आपको इस बार आप सिलेक्ट होते हुए भी, टॉप करते हुए भी आपको नहीं लेंगे हम लोग, गया बेकार में थोड़ी बहुत। जैसे कि आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप आ जाओ, वो बैठा अपने आप को क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल ओवर कॉन्फिडेंस। वो ओवर कॉन्फिडेंस के लिए मारा गया, वो नहीं गया, अभी तक नहीं गया, वो घूम रहा है इधर उधर। तो कभी बात ये है कि कुछ ऐसे होता है, कुछ चीज आपको उसको ध्यान में रखना है कि अपना कॉन्फिडेंस, हाँ थोड़ा बहुत, हम जो इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू लेता है उसको पता है कि बच्चे लोग थोड़ा बहुत नर्वस होते हैं अंदर में, लेकिन वो नर्वसनेस को छिपाते हुए, क्योंकि टास्क तो करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। कुछ कोई सपोज मान लो किसी कारणवश कुछ सब तुम प्रिपेयर करके नहीं गए हो, लेकिन एग्जाम के लिए तो बैठते हैं ना,
चार पांच पेज तो लिखते हैं ना, तो 4-5 पेज नहीं लिखेंगे, खाली जाएंगे अपना नाम और रोल नंबर लिख देंगे और आ जाएंगे, कैसे होगा? कोई फेल होने के लिए थोड़ी ना एग्जाम लिखता है। तो इसलिए जितना हो सके हम करने के लिए कोशिश तो करते हैं ना। तो ये बात ये है कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे, कॉन्फिडेंस कोई नहीं सिखाता, जैसे मैं कल भी बोल रहा था आज भी बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस किसी बुक से आपको नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो दिस प्रिपरेशन के लिए ये सब बात जानना जरूरी है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। आपको पढ़ाई के साथ जो बुकिश नॉलेज, जो थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा, उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब जैसे किसी, कल मैं एग्जांपल दे रहा था ओएसपी के लिए, जो कोई आईपीएस के लिए दिया है, तो आईपीएस का पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसका जो करेज है, करेज लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे मैं टीचिंग के लिए आता हूँ, मुझे लगना चाहिए, मुझे मेरे पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले कि जो भी टास्क मेरे सामने है मैं बच्चों को कन्विंस करा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, उनका जो क्वेरीज रहेगा, उनका जो क्वेश्चन रहेगा, उसको मैं समझा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, ऐसा नहीं मैं भी बोल पाऊंगा, मुझसे भी अच्छा कोई टीचर हो सकता है, लेकिन मेरा काम ये रहेगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये रहेगा कि मैं जब आप लोगों के साथ बात करता हूँ तो आप लोगों के मन में जो जो क्वेश्चन आने वाला होता है उसको मैं सोचूं और उसी हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करूं कि आप मेरे बात अच्छे से समझे, और जो जो क्वेरीज हैं तो आप पूछ पाए। अप्रोचेबल होना भी जरूरी होता है कभी कभी। जैसे कि आपको, आप किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, खुल नहीं पा रहे हो अपने आप को, मन में बात है लेकिन क्या सोचेंगे और सामने वाला क्या सोचेगा, ये सोच के हम बहुत बार पीछे रह जाते हैं। तो आगे चल के हम ये करने। ओके, सो सो इसमें कुछ दिया जाता है, ब्रिस्क इरेक्ट और कॉन्फिडेंस दिखाता है, एंड स्टैंडिंग विथ हैंड्स ऑन हिप्स, रेडीनेस और एग्रेशन, सिटिंग ऑफ द लेग्स क्रॉस्ड, फुट किकिंग स्लाइटली, वो गोरडाउन का साइन है। सिटिंग लेग्स अपार्ट, ओपन एंड रिलैक्स्ड, जब हम कभी कभी चेयर पे बैठ जाते हैं, आराम से पैर आगे की तरफ करते हुए बैठ जाते हैं, तो दैट मीन्स दैट सजेस्ट वी आर रिलैक्सिंग, वी आर नॉट बोर्ड। आर्म्स क्रॉस्ड ऑन चेस्ट, डिफेंसिव मोड में होता है, आप ऐसे करके रखना, ये डिफेंसिव चेकअप होता है। रबिंग द आई, रबिंग द आई डिसबिलीफ होता है, डाउट का सिंबल होता है, वो थोड़ा बहुत दिए। तो फिर आई सी व्हाट होता है बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में आप किस किस चीज के बारे में कॉशियस रहेंगे, केयरफुल रहेंगे। When you appear for an interview, it is important to remember that besides your resume, you are going to be watched for the clothes that you wear and how you present yourself during the interview itself. So it helps to give an impression whether you are speaking the truth or not. Direct eye contact में आप सच बोल रहे हो, कितना सच बोल रहे हो, कितना फैक्ट बता रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, वही दिखने के लिए वो मतलब जो होता है कि जो आपको क्वेश्चन आस्क किया है, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, आप एक के बाद एक आंसर देते चलना। मतलब पैनल पे 1-to-1 इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपको फेस टू फेस इंटरव्यू लेना पड़ेगा, कोई एक आदमी बैठेगा और आपको ही पूछता जाएगा, आप उसको बताते जाओगे। कभी पैनल में 2, 4, 5, 10, 12, 15 लोग भी बैठे हुए होंगे, बड़े बड़े पोस्टे रहने वाले होंगे, मतलब और दे गो ऑन टू आस्क। सो मैं एक इंटरव्यू के लिए बता सकता हूँ कि दे सेड दैट you have read a lot about your English language, and how do you think your language will help eradicate poverty from this world? मैं 20-23 साल का लड़का तब था जैसे, तो मेरा लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज पढ़ाने के लिए भी आए हो, आप बताओ खाली कि आप लैंग्वेज के जरिए सारे वर्ल्ड से पॉवर्टी कैसे निकाल सकते हो। मेरा आंसर ये था कि सर एक्सक्यूज मी बट लैंग्वेज कभी पॉवर्टी निकाल पाएगा? तो लैंग्वेज से नहीं बनता है, लेकिन लैंग्वेज के जरिए क्या होता है, मैं पॉवर्टी में हूँ, मैं पोर हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, ये मैं दूसरों के पास पहुंचा सकता हूँ, ये बात, ये मैसेज पहुंचा सकता हूँ। मैसेज को पहुंचाने के लिए लैंग्वेज तो चाहिए, लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है उसी हिसाब से। और एज वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, सो वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ वन फॉरेन लैंग्वेज, एंड इट इज
better, it can be better done with the help of English. That is the thing. तो द पॉइंट इज मेरा एक दोस्त भी था वहाँ, वो आया मुझे बाहर पूछा कि तुम्हें भी वही क्वेश्चन पूछे थे क्या कि लैंग्वेज के जरिए कैसे पोवर्टी दूर कर सकते हैं हम। तो बोला हाँ मुझे ही पूछे थे। क्या बोले? मैं बोला ये बोल रहा हूँ। अरे मुझे पूछे थे लेकिन मैं बोला सर नो कमेंट्स, मुझे पता नहीं कैसे कर सकते। The point is, if you say that I don't know is a roughest ever answer that you can give. Don't please don't say that I don't know the answer. So I'm afraid I'm unable to answer. I can't answer. Sorry, sir. If you could kindly change the question for me. ऐसे आप politely बोलो. But if you say directly that I don't know the answer of this question, that means it suggests that you are not serious about your interviews. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि इंटरव्यू एफएक्यू है इसमें। बाद में हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट ऑन योर अपीयरेंस एंड व्हाट डू यू डिसलाइक मोस्ट ऑन योर अपीयरेंस। आपके चेहरे पे कौन सा चीज ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है और कौन सा चीज ऐसा है, आपका नाक, आंख, चीक्स ऐसे, दांत या लिप से भिन्न, तो कौन सी चीज ऐसा है आपके चेहरे में जो आपको अच्छा नहीं लगता है, या किसी ने कुछ गलत रिमार्क्स आपको दिया हुआ है कि ये बात, ये आपके जैसे आपका मुंह पे ये जचता नहीं, मतलब। तो बहुत सारे बच्चे इसको आंसर नहीं दे पाते हैं, उसको पास छोड़ देते हैं, कोई सोचे नहीं कि ऐसे कोई पूछेगा। मतलब कुछ तो ऐसे लगता है बच्चों की अरे वो कैसा, मतलब वो क्या मैच मेकिंग के लिए जैसे जा रहे हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन क्या है, हम तो जाएंगे काम करेंगे, काम देंगे तो देंगे, नहीं देंगे उसमें मुंह में क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है, इसको पूछना क्या। That is the way they test your readiness, they test your ready wit, the confidence level, कि ऑड क्वेश्चन में, ऑड स्थिति में आप कैसे अपने आप को बाहर निकालते हो, कैसे अपने आप को मतलब अपने आप का जो कामनेस है, कॉन्फिडेंसी है, कैसे प्रूव कर पाते हो। वैसा नहीं कि जो थियोरेटिकल बात है बुक में जो लिखा रहता है, गांधी कहते मुसियारे मोरिथिले, सबको पता है गांधी कहते मुसियारे मोरिथिले, बट if someone can tell you that which particular date you would like to wipe from the human history, अगर चांस मिले तो मानवता के इतिहास से कौन से डेट को आप वाइप आउट करना चाहोगे। किसी बच्चे ने अगर बोल दिया कि गांधी जी का डेथ है और असासिनेशन जो हुआ था इसको अगर चेंज कर दें तो हिस्ट्री अलग सा रहेगा, उसको मैं कर सकता हूँ या और कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन नो आइडिया, नो कमेंट या आई डोंट नो, this suggests that you are not seriously taking your interview. So during your job interviews, try to adopt a posture that shows interest but still comes across as being relaxed. आप एक साथ दो चीज बता रहे हैं। देखो, आप जब इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं, हम क्या दिखाएंगे, हम हमारा इंटरेस्ट भी दिखाएंगे एंड स्टिल बिकम अक्रॉस बीइंग रिलैक्स्ड। हम रिलैक्स भी रहेंगे, हम अपना नर्वसनेस वहां दिखाना नहीं है। यू कैन डू दिस बाय सिटिंग अप ऑन द चेयर at the beginning of the interview with your back against the chair. If you slouch, it might give an impression that you are not interested in the job, and if you sit at the edge of the chair, you come across as being tense and uncomfortable. चेयर के पूरा एज पे, सामने जो धार होता है, कभी कभी अंदर की तरफ पूरा नहीं बैठ पाते हम चेयर में। जब नर्वस होते हैं थोड़ा आगे की तरफ बैठते हैं, पीछे जो बैकरेस्ट होता है, बैकरेस्ट बहुत पीछे रह जाता है, तो आगे की तरफ बैठना, दैट मीन्स यू आर टेंस। You see, ये छोटा छोटा वर्बल, नॉन वर्बल क्लूज, दे आर ऑल्सो सीरियसली टेकिंग इट। आप कैसे आते हो विथ स्टैगरिंग फीट, कोई नॉर्मली जैसे आता है, कॉन्फिडेंटली आता है, पैर लंबा लंबा पैर दे के आता है, मैं कम इन सर, यस डू प्लीज, व्हेन ही टेक्स अ टेक योर सीट, थैंक यू सर बोलता है, आराम से चेयर खिसकता हुआ बैठता है। और चेयर की तरफ जब बैठता है, इनिशियली स्टार्टिंग होता है, तो आप पूरा आराम से मतलब बैकरेस्ट के साथ पूरा सेट करके बैठना, कोई आगे की तरफ झुकते हुए ऐसे बैठना कि लीनिंग फॉरवर्ड बोले हैं, तो ऐसे अगर बैठोगे तो आपका नर्वसनेस उनको दिख जाएगा पहले से, दैट यू आर टू लीन फॉरवर्ड। ट्राई टू लीन फॉरवर्ड ए लिटिल व्हाइल यू आर आंसरिंग। पे अटेंशन टू द पोस्चर ऑफ द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग यू। सामने वाला जो बैठा है, जैसे आराम से बैठा है, वो अगर आराम से बैठा है, आप भी आराम से बैठ जाओगे, तो ऐसे नहीं बनेगा, बनता नहीं है, मतलब उनको ठीक नहीं लगता। इट इंडिकेट्स दैट यू फील एट ईज एंड यू आर रिलैक्स्ड। बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाना भी काम का बात नहीं है, वो दैट दे डू नॉट टेक इट इन ए पॉजिटिव सेंस। Success at the interview also comes from paying attention to the body language of the people interviewing you.
सामने वालों का भी कुछ कुछ देखना जरूरी है। आप खाली जैसे पूरा पॉइंट करके गए हो अपना आंसर और खाली बोलते जाओगे, सामने वालों को कभी देखोगे नहीं, क्योंकि देखोगे तो डर लगेगा। तो कभी भी जो सामने सुनने वाला होता है उसको अगर आप कभी भी आंख से नहीं देखते हो, इमेजिन नहीं करते कि वो आपकी तरफ देख रहा है, वो आप उसकी तरफ कभी भी नहीं देखोगे, तो ऐसे होगा वो, मतलब क्या होता है, वो खाली जानेगा माने वो, तो उसको पता चल जाएगा कि जैसे आपके अंदर कहीं डर बैठा हुआ है, आप अपना काम खाली जितना जल्दी हो सके काम तमाम करके जाना चाहते हो। तो इस सेंस में you may not get the desired success that you want. To conclude, do remember that knowledge of body language can help you in many ways to improve your own body language during an interview. Keep yourself updated on issues relating to body language to make success of your career and your life. See the simple conclusion that कि इंटरव्यू में बैठने का जो तरीका, एक चैप्टर है सेपरेटली फेसिंग एन इंटरव्यू बोर्ड, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू बोर्ड। जब वो चैप्टर में आएंगे हम ये सारे बात जो है इंट्रोडक्शन में आज जो दिए उसको पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, कैसे बैठोगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चंस, और ये प्रोबेबल क्वेश्चन का आंसर आपको 2-3 तरीके से भी दे दिया जाएगा कि ऐसे बोलोगे तो इसका इम्प्लीकेशन ये रहेगा, ऐसे बोलेंगे तो इसका इम्प्लीकेशन ये रहेगा। तो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो पोर्टफोलियो राइटिंग। पोर्टफोलियो क्या होता है आपको पता नहीं होता है, आपको बायोडाटा, सीवी, रेज्यूम शायद आप ये सब सुने हैं, लेकिन पोर्टफोलियो क्या होता है रिसेंट टर्म्स में आया है। व्हाट है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ये जो यूनिट है, ये यूनिट में हम पढ़ेंगे व्हाट ए पोर्टफोलियो इज, द डिफरेंस बिटवीन ए पोर्टफोलियो एंड ए रिज्यूम, देन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ए पोर्टफोलियो होने रखने में क्या फायदा होता है, व्हाट मटेरियल्स टू कलेक्ट फॉर ए पोर्टफोलियो, द ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द पोर्टफोलियो में कैसे करके रखते हैं, देन वेब पेज में कैसे रखेंगे, टू अरेंज डॉक्यूमेंट्स इन ए पोर्टफोलियो according to the relevance of a job, to write a brief profile of yourself highlighting your strengths, the importance of having a web version of a portfolio। वेब वर्जन आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड के आ गया, जमाना डिजिटल का है, तो आप डिजिटली कैसे अपने पोर्टफोलियो को शो करोगे, कैसे क्लिक करोगे, कैसे रखोगे, मतलब जैसे कि दे विल बी सो रेडी फॉर कंप्रीहेंशन में आता है ऑर्गेनाइजिंग ए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है, हाउ इज ए पोर्टफोलियो डिफरेंट फ्रॉम ए रिज्यूम। See, a portfolio is a powerful interviewing tool for just about all the job seekers. It is a visual representation of your abilities, skills, capabilities, knowledge, qualities, and it represents your potential. It presents tangible proof of your skills and abilities. Physically, it is a collection of things that represent work-related events in your life. Remember that while pursuing hobbies and volunteer activities, or simply pursuing your interests, you probably develop skills that can now be extremely useful in a work-related environment. The portfolio provides evidence or proof of your potential by demonstrating what you accomplished in the past. Why is portfolio worth the work? Portfolio जरूरी क्यों है? Because the portfolio helps you to make focused preparation for interviews, convince others of your skills, abilities, and qualities pertaining to the job requirements, then showcase and hence communicate your skills clearly, demonstrate the results of your work, establish the habit of documenting your accomplishments and results, create a personal database, access your own progress in your career development. A portfolio can be an important learning tool for job seekers to help them access their learning and to compare it to the employer's need for a skilled and capable employees. तो वो क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है पोर्टफोलियो। इन शॉर्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे आप मूवी देख रहे हो या पेज के बाद पेज जैसे पोर्टफोलियो होता है आपका, आप कहीं आपको कुछ प्राइज वाइज मिला है, जैसे स्कूल में थे आप डिबेटिंग में अच्छे हैं तो आपको प्राइज मिला है बहुत बार, तो आप प्राइज को तो रख नहीं पाओगे, सर्टिफिकेट्स को सजा के रख पाओगे, तो वो जो देखेगा वो देखेगा कि हाँ आपको डिबेटिंग आता है, मतलब या आप स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल तक अपना गेम या स्पोर्ट्स में गए हो,
तो उसका रिकॉर्ड आप वहाँ रख देते हो, तो उसको देख के उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ आप करिकुलर एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या को करिकुलर एक्टिविटीज में यहाँ तक पहुंचे हो। So this is what we call that it is a visual representation of your capabilities, your skills. So the portfolio should be housed in a sturdy three-ring binder with not more than 20 pages. See the पैटर्न भी बता दिया गया है इसमें कि आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो 20 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन दिस विल अलाउ यू टू ऐड, तो इसको मैंने ऐसे बांध के रखना जैसे आपका नया कुछ कुछ आप अगर ऐड कर रहे हो, इस साल अगर कुछ ऐड किए तो उसको भी आप जैसे जोड़ पाओगे उसके साथ। द फर्स्ट पेज ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी द इंडेक्स, जैसे आपको हमें कौन कौन सूचीपत्र, गोटे सूचीपत्र आप रखिए से पेज रे पोर्टफोलियो फास्ट सीधा सूचीपत्र रहइबो, सेथरे को जगह रे कौन कौन रखिछंती एवं तार गोटे क्रम भी अछि, तार ऑर्डर अछि कहा परे कौन रहबा जरूरी। तो सेथरे समति को होछि अपन को जे इट विल एनेबल हिम और हर टू लुक एट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड क्विकली गेट एन आइडिया ऑफ योर अचीवमेंट्स। तो दीटा कथा समान देखिबे आपनकर पर्सनल डिटेल्स अछि, तापरे कैरियर अछि, तापरे दीटा जिंस समान निहाती जोटा देखिबे सेटा होछि प्रथमे जे आपण केमती कोन कोन करिसंत, आपनकर निजर इंटरेस्ट लेवल कोन आ अचीवमेंट्स, आपन केते सर्टिफिकेट्स कोन कोन मिलिछि, कोठी डिबेट देकरी पाइसंती, कोठी ड्रामा रे पार्ट करिसंती, कोठी माने स्पोर्ट्स रे स्टेट लेवल तक पहुंचचंती, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचचंती। लाइकवाइज ऑल दिस थिंग्स, द पर्सनल डॉक्यूमेंट, the first personal document should be your personal resume और curriculum vitae, CV। CV आजकल का टर्म है, CV के लिए एक चैप्टर है, हम फिर कल जब बात करेंगे तो CV राइटिंग के बारे में बात करेंगे, CV क्या होता है, कैसे होता है। तो दिस concise document should outline all relevant credentials, education, work experience and activities। The next section, तो उस पेज पे जैसे जो आपका जो रेज्यूम रहेगा वो 1 पेज के बराबर होना चाहिए और मैक्सिमम 2 पेजेस, 2 पेज से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए अपना रेज्यूम। तो द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो विल इंक्लूड ऑल द सर्टिफिकेट्स, रिकमेंडेशंस एंड अदर क्रेडेंशियल्स दैट प्रूव्स योर एबिलिटी और योर कैपेबिलिटी। आपका कैपेबिलिटी के हिसाब से आप सेकंड पार्ट में उसी को रखना। द मोस्ट रेलेवेंट और द मोस्ट recently gained documents should come first in this section. Following this should be educational degrees, achievements, club recognition and volunteer acknowledgements. This section may come prior to the credential file if a person is just entering the professional world, like you people जो fast जा रहा है तो it is just graduating from the college and the remainder of the portfolio can be personalized from here। तो चलते आपके पास बहुत सारे कुछ अगर नहीं है तो जितना खाली सर्टिफिकेट्स वहां तक है तो प्राइस का है तो इसको आप रख लो, बाकी का पेज खाली रखना कि आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे हम उसके साथ आपका हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। द आइडियल पोर्टफोलियो इज ऑर्गेनाइज्ड नीट एंड प्रेजेंट्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ हु द पर्सन इज that is applying for the position. It is important to remember that an interviewer is a busy one, so the portfolio should present a person in the best light without too many frills or time consuming conclusions। इसलिए वो बोले हैं कि पोर्टफोलियो का जो लेंथ है मैक्सिमम ऑफ 20 पेजेस। तो द पोर्टफोलियो लाइक द resume should be fluid, adjustments need to be made in for each positions out. It is important to keep the portfolio updated and complete। At the back of your mind, keep looking for documents to add to your notebook। The portfolio is your best chance of demonstrating skills and experiences to a prospective employer। Make sure you have one। That means अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो जितना जल्दी हो सके अपने आपका पोर्टफोलियो बनाना सीख जाइए। पोर्टफोलियो का आप अगर नेट पे बैठेंगे तो पोर्टफोलियो, सैंपल पोर्टफोलियो बहुत सारा मिल जाएगा, आपको अपने हिसाब से सेट करके बना सकते हैं। ये ऐसे दिया गया है, बाद में जब CV बनाना होगा जो चैप्टर्स आएगा उसी चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे पोर्टफोलियो में आप अपना क्या क्या रखोगे, कैसे करोगे। तो इसके साथ ये जो हम बात कर रहे हैं अभी थोड़ा बहुत ग्रामर के सेक्शन में जब मैं जाने वाला हूँ, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक सेक्शन है, आप अगर बुक डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, हर एक बुक में एक चैप्टर के बाद एक वोकैबुलरी आता है। द वर्ड वोकैबुलरी स्टैंड्स फॉर द नॉलेज ऑफ न्यू वर्ड्स।
आपको हर एक चैप्टर में कुछ नया वर्ड आता है। आप ऐसे मत सोचो कि डिक्शनरी में वो मीनिंग देख लिए बात हो गया। एटा होची गोटे नुआ शब्द आपण माने जेतोले शिखुचंती वोकाबुलरी हला शब्द ज्ञान। आपण किछि नुआ शब्द सबु थरो शिखुचंती, तो सबु थरो सबु चैप्टर रे किछि ना किछि नुआ शब्द अछि जो शब्द आपण को कोन हबो नै आपण को आगु को बढ़ाय पे दबो। सो सपोज केमती गोटे एग्जांपल मो दे दोची, गोटे जगह रे गोटे ऑफिसर जने आसिले दी चार जन बसचंती जूनियर बा सबऑर्डिनेट, तांको तो जणो पचले सी पचले अच्छा you know there is a team that is going tomorrow to some place, आपण मान को समस्त को जणा अछि ना काली हमें गोटे जगह जाउछु, समस्त हां मानले। तापर से पचरले जे ओके हु विल पायलट द प्रोजेक्ट। जे चार पांच जन जक बसथिले के किछि कहले नै, से दुई तीन थर रिपीट करले तापर पळैले। बर्तन ई मान को भीतर पड़ला रे भाई एमती केमती कहले हु विल पायलट द प्रोजेक्ट माने कोन। पायलट कहले हम बेसिकली कोन बुझुछु, एरोप्लेन रे चलेला वाला गोटे हु विल पायलट द प्रोजेक्ट, किए पायलट करिवो प्रोजेक्ट को, किए पायलट करिवो तार अर्थ कोन। एटा गोटे नुआ शब्द पायलट ता नाउन ता पुनी भाग करि से यूज करले। तो विल ता गोटे मॉडल अछि ता संगे V1 फॉर्म रे पायलट आपण मन वर्तमान पर्यंत जणा थिला जे नाउन। तो सेठी एई एग्जांपल रे आपण जानु चंती जे पायलट ता फॉर भेकरी यूज हला। सो सचिन तेंदुलकर कैप्टेन्ड इंडिया मेनी टाइम्स। नाउ यू सी कैप्टेन गोटे नाउन थिला, क्रिकेटर कैप्टेन अछंती बा कप्तान जहां कहूछ हमें ताको हम भाग करि यूज करले। तो जानुथिले कोन हबो ना जो लोकटी पचरला सी आपन ए शब्दटी गोटे छोटिया कांसेप्ट, एटा गोटे छोटिया एग्जांपल कैप्टेन हला पायलट हला, तो आपण ताको यूज करि परुचंती वर्ब हिसाब रे, ताले जे सुनला वाला अछि से सुनिला वाला फील करबो जे आपण लैंग्वेज को भल भाबरे यूज करि परुचंती। काली कहितली जे आपण माने टिके टिके इंग्लिश कहबा सिखंतु, तो कोन हबो एबेठु जदि आपण प्रिपरेशन टी स्टार्ट करिवे इंग्लिश कहबार, ताले जेतेबेले ग्रेजुएशन सरीबो आपण माने जेतेबेले रिटन टेस्ट देकी इंटरव्यू पाई जिबे सेतेबेले को कम से कम ई टंग टाइटनेस टी नथबो। आम पाखरे बहुत पिलांग पाखरे हम ओडिसा रे बहुत पिलांग पाखरे कोन अछि टैलेंट अछि, दे नो व्हाट टू स्पीक बट एज दे डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो थोड़ा बहुत क्या होता है बीच बीच में कट जाता है लाइन से, बोलते बोलते दे फंबल फॉर वर्ड्स, सही वर्ड दिमाग में नहीं आता है। सही टाइम में सही वर्ड अगर नहीं आएगा तो आप जो बोल रहे हो वो जो टेम्पो है TMPO टेम्पो, तो स्पीड जिस हिसाब से आप बात करते जा रहे हो वो ब्रेक हो जाएगा बीच में। तो ब्रेक हो जाएगा दैट सजेस्ट दैट जो सामने वाला होता है, जो सुनने वाला होगा, वो आपके ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन ले आएगा कि ये इतना नहीं है। मतलब तो फ्रेजल वर्ब पिछली बार हम पढ़े थे कि फ्रेजल वर्ब के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि somewhat your speech, your writing even will look beautiful, it will suppose जैसे कि fall out, तो fall का मतलब आपको मालूम है, fall मतलब गिरना और out मतलब outside, लेकिन fall out फ्रेजल वर्ब के हिसाब से अगर हम यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है quarrel। so the two friends have fallen out। So the point is now my ये जो vocabulary के सेक्शन है, दो सेक्शन में जो जो vocabulary पोर्शन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे बात जैसे आई वॉन्ट माई रूम कारपेटेड, कारपेट को यहाँ भाग करके यूज किया गया है, बहुत सारे लिस्ट कैसे है। तो आई वॉन्ट माई रूम कारपेटेड, तो मतलब कारपेट बिछाना चाहता है। आई वॉन्ट समवन माइट कम और समवन मे कम और समवन शुड कम एंड कारपेट माई रूम, तो आई वॉन्ट माई रूम कारपेटेड, तो कारपेट वहां भाग के हिसाब से यूज हुआ। वी क्यूड अप फॉर द टिकट्स, we queued up for the tickets, QUEUE means make a line, तो क्यू लाइन होता है, तो make a queue, आप क्यू में खड़े हो जाओ, तो क्यू का स्पेलिंग होता है QUEUE, UE जो भावेल है, दो भावेल कंजिक्यूटिवली आ जाता है, चार भावेल लेटर वाला वर्ड, एक ही वर्ड होता है इंग्लिश ये में कि क्यू के साथ UE और साथ में फिर EUE रिपीट हुआ है, तो QUE फोर भावेल लेटर वर्ड होता है। क्यू का मतलब प्रोनाउंस खाली पहला लेटर जैसे प्रोनाउंस होता है वैसे ही प्रोनाउंस होगा, क्यू खाली क्यू का मतलब होता है लाइन, तो उसको भाग करके यूज हुआ है। जैसे यहाँ वी क्यूड फॉर द टिकट्स, टिकट खरीदने के लिए हम एक लाइन में खड़े हो गए। तो दिस इज हाउ vocabulary will help you and simultaneous two of the things are there, two grammar concepts are there, एक के बाद एक हम बात करेंगे टू ग्रामर्स के बारे में। दो चैप्टर आज हम जैसे बताए थे कि
जो बुक 2 ब्लॉक 2 का यूनिट 5 एंड यूनिट 6 वी हैव डिस्कस्ड। एंड इसमें ये है कि बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू में जब जाएंगे तब बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखना, अपने आप को थियोरिटिकली कैसे अपने आप को संभालते हुए इंटरव्यू में बैठना। एक चैप्टर इसके पीछे आएगा, कोई इसी ब्लॉक के एंड में या दूसरे दिन जैसे हम बात करेंगे, किसी बुक में आएगा तो डायरेक्ट विथ एग्जांपल्स बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आएगा। वहाँ डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई तक रख के अब ये करेंगे। तो इसमें दो ग्रामर कंसेप्ट जैसे बोला, एक इफ क्लॉज वाला ग्रामर 135 जब पढ़ रहे थे तब भी इफ क्लॉज था, अब भी इफ क्लॉज है। एक इफ क्लॉज है और एक मॉडल्स के बारे में है। तो पहले मैं इफ क्लॉज के बारे में बता दे रहा हूँ और इसके बाद फिर मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो इफ क्लॉज जो है, इफ क्लॉज सेंटेंस और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन वही बात सेम है। इफ क्लॉज थ्रोज ए कंडीशन। एंड आपको सबको पता है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज एक बड़ा पार्ट होता है, बड़ा सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट रहता है, प्रेडिकेट रहता है, लेकिन वो अपने आप में मीनिंग दे नहीं पाएगा या ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ पाओगे। जैसे दिस इज ए पेन बोलने से आपको मीनिंग के लिए कुछ वेट करना नहीं पड़ता है कि ये एक कलम है। लेकिन जब मैं बोल देता हूँ कि ये वही कलम है, दिस इज द पेन, तो बोल देने से क्या हो जाता है, ये क्लॉज बन जाता है। कैसे क्लॉज होता है, मतलब कि कुछ और एक वर्ड या कुछ पार्ट ऑफ फ्रेज मुझे जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा कि दिस इज द पेन व्हिच माय फादर गेव मी। कि जो व्हिच माय फादर गेव मी, ये दूसरा क्लॉज हो गया। व्हिच माय फादर सब्जेक्ट हुआ, गेव हुआ, तो ये जो क्लॉज हुआ, ये क्लॉज हम पेन के लिए बैठा है, तो ये रिलेटिव क्लॉज हुआ। रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच के साथ वो यूज हुआ, इसलिए इसको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो दिस इज ए पेन बोलने से ये एक सिंपल सेंटेंस हो जाता है। इसमें ये एक क्लॉज है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में मीनिंग देने वाला ग्रामेटिकली करेक्ट क्लॉज होता है, जो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। और दो तरीके का क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेटर के साथ शुरू होता है, जैसे एंड, बट, सो, देयरफॉर, नाइदर, नॉट, स्टिल, येट, these are coordinators in English. Otherwise, so these are called coordinators in English. And coordinator, ये सब coordinator के साथ जो क्लॉज बनता है वो होता है coordinating clause। और coordinating clause के साथ हम जो सेंटेंस बनाते हैं, ये सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो इसमें दो आया आपको, वर्क हार्ड एक इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, वर्क हार्ड, वर्क V1 फॉर्म में रहा, वर्क हार्ड, आप परिश्रम करो, नहीं तो टच इट, otherwise go to, otherwise you will fail. So if you break a compound sentence, we get two simple sentences, जैसे work hard और you will fail। जो और बा otherwise इटा गोटे कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर अच्छी बोली जो सेकंड पार्ट रहला और you will fail बा otherwise you will fail, आपको हमें कोऑर्डिनेट क्लॉज कहले। तो सेमती इफ क्लॉज गोटे अच्छी जो क्लॉज रे इफ लागे। इफ क्लॉज बेसिकली हम चारि प्रकार रे इफ क्लॉज यूज करूछु, बाकी दीटा इफ क्लॉज तमरो दिए जाइछि, तो दीटा क्लॉज को हम सिखले बेटर हिजबो। गोटे होउछि मने रखक पड़िबो जे गोटे ओपन बा रियल कंडीशनल क्लॉज जोटा पॉसिबल हबा, तो पॉसिबल कंडीशनल क्लॉज जा कहबा, जोटा इफ क्लॉज गोटे साइड रे इफ रहबो, इफ संगरे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब रहबो, आ मेन क्लॉज रे भी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब रहबो। जेमती इफ आई हैव मच मनी, इफ आई हैव मच मनी, इफ के साथ आई रहा सब्जेक्ट, इसके बाद हैव आसिला, तो हैव हला इफ आई हैव मच मनी, मो पाखरे जदी बहुत पैसा हबो, तो बहुत पैसा हेले मु जहा करबे को चाहिबी, आपन माने से करबे को चाहिबे नै, किए घर किनिबो, किए गाड़ी किनिबो, किए आउ कोन करिबो, किए हे तो गहना किनिबो, किए पोशाक पत्र किनिबो, किए वर्ल्ड टूर रे पळैबो। तो से अनुसार किंतु जो सब काम आमे कहिबा जोटा करिया पई, सेटा कोन हबो, सेटा बेसी पैसा हेले आमे करे। साधारणतः गाड़ी किनिबा, घर किनिबा, सब बेसी पैसा हेले जे कि हबो, तेनु सेटा पॉसिबल कंडीशन, सेटा हे पारे से संभावना टी पॉजिटिव सेंस रे हमें देखुछु जे से कथाटी हे पारिबो, तेनु से कंडीशन टी कोन पॉसिबल कंडीशन। पॉसिबल कंडीशन हेले हमको मन रखियो पड़िबो जे इफ क्लॉज संगरे जदी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब रहला, इफ आई हैव मच मनी, सो इफ आई मेक ए प्रॉमिस, जेंति भाबटा कोन रहला, मेक रहला V1 फॉर्म रे रहला, तो एपटे जदी V1 फॉर्म रहइबो ताले आरो पटे हम सेल किबा विल मॉडल सहित V1 फॉर्म लगै करी करबा। आई विल बाय ए हाउस, आई विल बाय ए कार, आई विल गो ऑन ए वर्ल्ड टूर, जहाँ हमें लगेबा से पटे सेटा पॉसिबल हे परिबो, ताकू हमें
संभाव्य परवर्ती पर्याय रे हबो कहि हम सेल विल मॉडल सहित V1 फॉर्म को लगेबा इटा होची पॉसिबल कंडीशन। आ गोटे कंडीशन अछि जोटा हम इमेजिन करबा घरे बस करी मते जदी आ टिके सुविधा मिलता मु एमती करि परंती मोर जदी डेणा थांता मु आकाश रे उड़ी परंती मु मेघ खंडे हेतिले सहारा मरुभूमि रे वर्षा करंती लाइक वाइज मु प्रधानमंत्री हेतिले एमती सब कथा करि परंती मु जदी कलेक्टर हेथांती ताहले एमती करंती ई जो इमेजिनेशन रे कथा अछि जोटा हम इमेजिन करूछु सतरे कलेक्टर टे कर दिया गले कि कोन करंता सेटा अलगा कथा बट हम इमेजिन करूछु फाइक इफ आई हैड द विंग्स एठी मन रखियो पड़िबो कोन ई प्लस संगरे सब्जेक्ट संगरे V2 फॉर्म ऑफ वर्ब बा पास्ट सिंपल पास्ट वर्ब व्यवहार हेतु इफ आई हैड द विंग्स ऑफ ए डॉग आई वुड फ्लाई आर पटे कोन होउची सब्जेक्ट संगरे वुड प्लस V1 फॉर्म ऑफ वर्ब रहबो तो हेले हम कोन करि परिबा ना इटे को इमेजिनरी कंडीशन बोली कहबा इमेजिनरी कंडीशन को चिन्हबा पे हेले हम कोन जणा पड़िबो ना सेटा साधारणतः फर्स्ट पर्सन अकाउंट रे थिबो आ तार वर्ब टा V2 फॉर्म रे थिबो इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ आई वेयर द कलेक्टर ऑफ some district of Odisha like you can say if I were the collector of Sundargarh so I would make it the number 1 district of Odisha so आगे चल के हो पाएगा ये बात अलग है लेकिन the thing is I am imagining that I can no more be the collector मु collector ही परिबे नहीं it is my imagination तो imagination वाला imaginary condition के लिए हम क्या करते हैं if plus के साथ if plus V2 फॉर्म ऑफ वर्ब if plus subject plus V2 फॉर्म ऑफ वर्ब दूसरे साइड में would के साथ would या could के साथ भी हम V1 फॉर्म को लगा के बात करेंगे मतलब ये होता है इमेजिनरी कंडीशन और उससे पहले जो बोला वो पॉसिबल कंडीशन होता है दोनों साइड में if के साथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा if क्लॉज में और मेन क्लॉज जो रहेगा इसमें सेल विल मॉडल के साथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा तो इसको चल के जिससे सेल विल मॉडल के बारे में बोला तो मॉडल आर द वर्ब्स सम वर्ब्स जो जितने वर्ब हम यूज करते हैं जिससे जेमति कि सब वर्ब जो अछंती क्रियापद अपन जानु चंती जे वर्ब होला गोटे क्रियापद रु कोन मिलिबो ना गोटे कामर सूचना मिलिले से पदटी को हम क्रियापद कहबा तो जो वर्ब रहिला विभिन्न प्रकार रो वर्ब अछि जेमति हम काली কথা होतले नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स पे जो टू टेंस हमको जाना पड़िबो नै बे टेंस संगे आई एम गोइंग आई वाज गोइंग ये जो दीटा सेंटेंस हला आई एम गोइंग एवं आई वाज गोइंग सेतरे एम और वाज हमको टेंस बतेली गोइंग रो किछि नै त गोइंग ता गोटे नॉन फाइनाइट वर्ब हला सेमति जो वर्ब अछंती दी प्रकार रो वर्ब हम बर्तन यूज करि के देखिबा गोटे अछि मेन वर्ब बा लेक्सिकल वर्ब हम जा कहू जहार डिक्शनरी मीनिंग अछि गो कम रीड फळे आ किछि अछि जोटा इज एम आर वाज वेयर कैन बट कुड एमति सब जो अछि कैन कुड माइट एगुडा कोन हबो नै माने एटीट्यूड देखेबे मु सपोज यदि कहबी आई कैन सिंग ए सॉन्ग मु गोटे गीत गाई पारे इट सजेस्ट माय एबिलिटी मे आई गो आउट सर मु बाहर को जाई पारे की सो विथ द यूज ऑफ मे we beg for the permission of the teacher so may I join this so may you live long it is a wish herein you never go for the permission may you आपण दीर्घजीवी होंतु तो ये हम गोटे विश करू हम गोटे प्रे करू भगवान को जे आपण दीर्घजीवी होंतु तो ये जो विश हला बा जो परमिशन मागिले बा एबिलिटी देखैले ई भलिया जो एटीट्यूड देखौची बा ये रो सब्जेक्ट रो जो एटीट्यूड देखैला भलिया वर्ब होचंती किछि वर्ब्स अछंती जट दे आर 13 इन नंबर will would shall should may might can would dare must need used to ought to ये जो 13 रहले ये 13 टी होचंती मॉडल एंड मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर सो जो एटीट्यूड हला से एटीट्यूड गुडा केमती हबो ए जो आस्किंग फॉर परमिशन सजेस्टिंग समथिंग सपोज someone asked you it's very hot inside so shall I open the window you offer shall I open the window shall I switch on the phone shall I switch on the fan suppose ये जो कथाटी आपण ऑफर करले सजेस्ट करले जे मुई कामटी कर देबी की तो सेटा मोडालिटी रो काम सेटा मोडल वर्ब यूज करबा तो मोडालिटी इन इंग्लिश सेथरु किछि एक्सरसाइज अछि आपण मानकर ये रे तो सेटा को जानिबा एथि पय जरूरी हबो बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरव्यूइंग एंड इन डिटेल्स में जैसे कि अपने आप का जो काबिलियत प्रूव करना है इसमें कोर्टसी एक मेजर कंसेप्ट होता है तो आप तो बात करेंगे लेकिन कितने पोलाइटली आप बात करते हैं पोलाइट टक करने के लिए आपको बार बार मोडल ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्प लेना पड़ेगा इसमें एक ही बात खाली आज का यूनिट में है तो आज के यूनिट में जिस मॉडल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ओब्लिगेटोरी ओब्लिगेशन
ओब्लिगेशन कैसे होता है, छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। तो ये शुड एक मॉडल होता है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारे सीनियर होते हैं, एल्डर होते हैं, बहुत सारे कुछ काम करते हैं हमारे लिए वो पेरेंट्स, तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, बट वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। तो दोनों होता है, लेकिन ऑट टू के साथ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी हो जाता है। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी का मतलब क्या होता है, इसमें पनिशमेंट का भय भी होता है। माता पिता के पास क्या होता है, पेरेंट्स थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन पनिशमेंट ज्यादा नहीं मिलेगा। लॉ के साथ वो ऐसा नहीं है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज में जाएगा, लेकिन इफ यू डिसरेस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग यू मे बी पनिश्ड बाय लॉ। तो जोठी लॉ रो कथा आसो, जोठी ऑब्लिगेशन सेटा होची ऑब्लिगेशन रो कथा। तो ऑब्लिगेटरी मॉडल जेंति कहली एग्जांपल रे शुड और व्हाट टू अछि, शुड, ऑट टू और मस्ट, ये तीनटा मॉडल को हमें ऑब्लिगेटरी मॉडल कहूँ। तो ऑब्लिगेटरी मॉडल को लेकर केतटा एक्सरसाइज तुम पाखे अच्छी, बट दैट इज टू पेज नंबर 25 पेज नंबर 25 ब्लॉक 2। जदि क्या पाखे अच्छी बही ना भी जो डाउनलोड करके जो पढ़ुंट से देखा कथा, जिन गुड़ा जानवा कथा ये आपंकर सेंटेंस मेकिंग है, जो कथा होती क्या संगे इंटरव्यूज रे बसला बेलू सही मॉडल यूज करेंगे, यू विल नॉट बी फम्बलिंग फॉर एंड यू मे नॉट बी मिसजज्ड। आपको थोड़ा बहुत कुछ बारे में पता नहीं है, जो बेसिक चीज होता है, तो ये पता नहीं है, लेट अदर्स नो दैट यू आर नॉट अप टू मार्क। हम अपने आप को साबित करने जा रहे हैं कि जैसे मैं कल बात कर रहा था कि दिस ब्लॉक इज टोटली मेकिंग यू सेल्फ कॉन्फिडेंट एज यू आर फेसिंग द ग्रेटर वर्ल्ड आउटसाइड। आप आगे चल के जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, या किसी के अंडर काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, दोनों केस में अपने आप को कैसे, किस सांचे पे ढलना होगा, कैसे आपका बातचीत करने का तरीका कैसे रहेगा, कैसे रहन सहन चाल ढाल, दूसरों के साथ कैसे बात करेंगे, अपने आप का काबिलियत को कैसे प्रूव करेंगे, दूसरों के बात कैसे सुनेंगे, अपने बात को कैसे जाहिर करेंगे, ये सारे चीज के बारे में इन डिटेल्स डिस्कशन किया जाएगा। 2 ही दिन है और 4 दिन जो है वो थ्योरेटिकली बहुत सारे बात इसमें है। तो आप लोगों के लिए ये भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप डाउनलोड करके बुक्स अगर नहीं भी है तो डाउनलोड करके आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए बुक्स, बिकॉज ये बुक्स आपको आगे चल के बहुत काम में आएगा। अगर आप ये देख नहीं पाएंगे कभी कभी तो बाद में फिर पछताएंगे जैसे। तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि नॉलेज जैसे भी हो, जिस फॉर्म में भी मिल रहा है, आपको एक्वायर करना है कि नॉलेज आप जितना चाहें इकट्ठे करते जाइए। पहले यू आर इन द फॉर्मुलेटिंग ईयर्स, जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा आप लोगों को, तो आप डायरेक्टली आप अपने जो करियर है या अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए आप लोग आएंगे, मतलब ग्रेटर वर्ल्ड के साथ, तो आपको वहाँ अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तो अपने आप को साबित करने के लिए आपका पहला चीज होता है कि कर्टसी रहना मतलब जरूरी रहेगा। तो कर्टसी के साथ आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप बात करोगे तो या कुछ लिख के प्रेजेंट करोगे अपने अपने का, ये कुछ जैसे कि आपका जॉब एप्लीकेशन हुआ या कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, कभी कभी प्रेजेंट करने के लिए पड़ेंगे, एक स्पीच राइटिंग है आपका आएगा आगे चल के कि आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये बहुत सारे जगह आपको जैसे रहेगा जिसमें भाव का यूज रहेगा या मोडल भाव का स्पेशली यूज करना पड़ेगा, या ऑब्लिगेटरी मॉडल से इट इज बीन पॉइंटेड आउट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि शुड, मस्ट और नीडेंट का यूज करना पड़ेगा। एक एक्सरसाइज है, लेकिन बात यह है कि आपको ओब्लिगेशन सजेशन के साथ आप देखिए कि ओब्लिगेशन के साथ हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो होता है ऑट टू और मस्ट। आई मस्ट कंप्लीट माई टास्क बिफोर इट गेट्स डार्क। तो अंधेरा होने से पहले मुझे मेरा काम खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो है ये ओब्लिगेशन होता है, क्योंकि पेंडिंग रखेंगे फिर कल क्या होगा क्या पता। तो जिस सेंस में वो ओब्लिगेशन का सेंस या प्रोमिस, जैसे हम किसी को बात किए हैं तो प्रोमिस किए हैं अगर, तो प्रोमिस में इनफॉर्मेलिटीज प्रोमिस होता है, तो आई शुड डू माई जॉब बट आई मस्ट रिटर्न माई बुक्स टू द लाइब्रेरी इन टाइम, वहाँ मस्ट हो जाता है। एंड उससे और ओब्लिगेशन ज्यादा आएगा तो हम ऑट टू को यूज करेंगे। सो नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। आप 2 ही चैप्टर सुने, बहुत सारे चीज है इसमें,
तो कुछ मुझे लगता है कि आपको अगर थोड़ा बहुत आप लोग अगर पूछना चाहेंगे, जो जो सुने आज, तो आज के उसी कोर्स के बारे में खाली बात कीजिए कि कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट्स है जो बताया गया इसमें क्लियर नहीं हो पाए, और कुछ क्वेरीज है कि सर ये जो डिटेल्स है आगे चल के और 2 चैप्टर है इसमें इंटरव्यू के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट हुआ अभी बॉडी लैंग्वेज का। फिर भी कोई किसका कुछ डाउट है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसा है, और इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो, या कुछ क्वेश्चंस, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, then you are open to ask the questions. Any question? Hello? If anybody of you want to ask any question, then let me summarize जो हम बात किए, 2 चीज, 2 चैप्टर, ब्लॉक 2, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, यूनिट 5 एंड यूनिट 2। यूनिट 5 था यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली, बॉडी लैंग्वेज को कैसे इफेक्टिवली हम यूज करें, तो हाउ टू यूज बॉडी लैंग्वेज फॉर आवर बेनिफिट। बॉडी लैंग्वेज इसमें हम क्या सीखे, इसमें हमें ये बताया गया कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, अर्थात इसमें वर्ब्स हम यूज नहीं करते हैं। वी unconsciously even we go for nodding our heads, our movement of eyes, movement of fingers, hands, legs, अपना बॉडी का जो पोस्चर होता है, पूरा गेस्चर, बॉडी का पोस्चर, कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे आए, कैसे बात करें। इवन कुछ कुछ डिप्लोमेट वर्ल्ड पे आप अगर जाओगे तो वहाँ हैंडशेक का भी तरीका होता है, कितना टाइटली आप हैंडशेक करते हो, दूसरा हाथ एक हाथ के साथ रख के करते हो, तो डिप्लोमेटिक फ्रेंडलीनेस, मतलब दूसरे देश के साथ, मोदी जी जाते हैं ट्रम्प के साथ हैंडशेक करते हैं, कभी आप देखे हो तो देखोगे कि वहाँ ये जरूरी होता है कि आप राइट हैंड से अगर हैंडशेक करते हो तो लेफ्ट हैंड को उसमें रखना पड़ेगा, तो ये मित्रता का सिंबल होता है, तो फ्रेंडलीनेस। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस। ये बॉडी लैंग्वेज, और आपके लिए जो बॉडी लैंग्वेज जरूरी होता है वो होता है कि इंटरव्यू का बॉडी लैंग्वेज। तो इंटरव्यू का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बहुत आपको आज इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्योंकि एक पूरा चैप्टर है हाउ टू फेस एन इंटरव्यू बोर्ड, एक इंटरव्यू बोर्ड को कैसे फेस करें, तो उस चैप्टर में इन डिटेल्स हम बात करेंगे। इसलिए जो इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दिया गया, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे भी जितने भी सेंटेंस हम बात करते हैं उसी सेंटेंस का या उसी मतलब जो जैसे टॉपिक होता है डिस्कशन का, उसी डिस्कशन में से ओनली 10% वी यूज वर्बली एंड 90% of our talk or of our message reaches to the receiver through body languages। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज जरूरी है, हम लोगों को बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एंड बॉडी लैंग्वेज अनायास हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको आप जानबूझ के डरे हुए हैं, ऐसे आप दिखा नहीं पाएंगे। यू कैंट एक्ट बॉडी लैंग्वेज, यू कैन एक्ट, यू कैन मोल्ड योर स्पीच। वर्बल लैंग्वेज को, वर्बल कम्युनिकेशन को मोल्ड किया जा सकता है, बट बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं कर पाएंगे। इटा अनायास आसिकी अनायास हेजिवो, आपण न जानिथिबे सेमति हे जाइथिबो। आपण आमे बसुछु, आमे कोटे कोटे बसिले बेले को क्रॉस लेग आमे बसुछु कि संगे संगे हम गोड़ दिटा छंदी हे गेला बळे हे जाउची, कि गोड़ हलेबा गोटा हैबिट रे अछंती, गोड़ हलेबा आरंभ कर दोछु। आ बसिले बेले टिके समय परे आमे चेयर रो जो अछि आर्म, माने आर्म रेस्ट, हैंड रेस्ट जो पर्सन अछि ता ऊपर गोटे रिलैक्स पोजीशन रे बस जाउछु। एगुड़ा को अनायास हो जाउची, आमे कोठी गोटे को घरे अच्छु फॉर्मालिटी जगिबा कथा, सेठी एमती बसबा कथा नुह, आमे से कथा भाबु न जनरली, बिकॉज आमे भाबी परिबा नै, कारण से जो बॉडी लैंग्वेज अछि, बॉडी लैंग्वेज ता अनायास सेमती हुए। तो सेठी पई आजिकली बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स माने अछंती इंटरव्यू बोर्ड रे, तब आंसर क्वेश्चन आंसर दबा को बसु साइमल्टेनियस जने लोक थिबे जे किछि पचरिबे नै, खाली चुपचाप बसथिबे, जे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी हेथिबे, जे देखिकरी कहबे तमे केते नर्वस अछ, तमर बॉडी लैंग्वेज माने जो बसिबार तरीका अछि, ठिया हवा, कथा कहबा, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, नोडिंग ऑफ योर हेड, सी जो सारा जिंस अछि, आपण कांधोटा केमति कर रखचंती। आपण बहुत बार देखिथबे जदि क्रिकेट देखुचंती, क्रिकेट रे जो कथा कहला बेल को खेलाली माने बहुत समय कांधोटा से माने ऊपर केमति उठेकरी कथा होचंती, त जो ब्रोड शोल्डर रो काम अलगा अछि, स्ट्रेट करके रखिबा शोल्डर को, आउ शोल्डर झुके करी, कांधो झुके करी कथा हवा, अर्थात आपण निजे को पावरलेस फील करचंती।
अन्य आगे सबमिसिव फील करूछंती तेणु हबो नै सेमती आपण जतबळे निजको काबिलियत प्रूफ करबार अछि कॉम्पिटेंसी प्रूफ करबार अछि कैलिबर को देखैबार अछि सेतबळे आपण आपणकर निजरो जो टोटालिटी अछि आपणकर जो पर्सनालिटी अछि ताकू होल्ड करबार अछि तन पर्सनालिटी कहिले आमे खाली बेसिकली थियोरेटिकल बढ़िया भाषा रे कहूछु आपण आसंतु आज्ञा आपण सबुठ भलो भाषा जेमति खाया पय आमे कहबा सबुठ ओडिया भी बहुत भलो भाषाटी अछि सेटला भोजन करबा भुंजीबा केही आपण मान भितर आजकल केही मते कहबे नै जे आमे हम गेस्ट मु डाकु आसंतु भुंजीबा हुंतु बा भोजन करबा हुंतु खाइबे आसंतु आसंतु खाइबा हे गलानी एमती प्रकार रे कहूछु एही सेमती जो पूरा एकदम टिपिकल जो टॉप लैंग्वेज अछि से लैंग्वेज रे हमें कहि परबा नै से लैंग्वेज को हायर करे पड़िबो ताको शिक्षा पय पड़िबो आजकल से लैंग्वेज हम यूज करनु किंतु कथाटी होछि आपनकर जो डाकिबार जो तरीका अछि जो मैनरिज्म अछि से मैनरिज्म टी सेटा करा जाई परिबो सेटा होछि बॉडी लैंग्वेज रो कथा एवं से प्रकार अपन बॉडी लैंग्वेज कथा में देखिले बॉडी लैंग्वेज परे जो सेकंड चैप्टर हम डील करले से सेकंड चैप्टर होछि पोर्टफोलियो मेकिंग अर्थात अपन जो फर्स्ट इंटरव्यू अपन दबा पय जिबे कि जॉब पय अप्लाई करिवे आमे गोटे जॉब एप्लीकेशन लेखा सिखिबा या परे जॉब एप्लीकेशन परे गोटे इंटरव्यू होछि तो से जो इंटरव्यू रे डका हवा तोले इंटरव्यू को गला बेले को आमे संगरे डॉक्यूमेंट्स नबा से डॉक्यूमेंट्स टी कोन आजिकली रो कांसेप्ट रे खाली रिज्यूम बा करिकुलम बिटे बा सीवी जहा को कहूछु बा बायोडाटा टे धरि के नुहे बा सर्टिफिकेट्स रो डायरेक्शन रे एबे गोटे नुवा रिसेंट ट्रेंड अछि जोटा होछि पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो टे निज निजर पोर्टफोलियो बनैबा जदि नाही सिखौछन जेमति अपन खूब शीघ्र निजर तैयारी कर दबाटा भलो तार अर्थ हो सेथिरे कोन रहइबो सेटा एट बेस्ट 20 पेज हबो 20 जो A4 साइज पेज बा जेरेक्स पेपर पेज जेमति कहूछु हमें सेटा स्पाइरल बाइंडिंग रे बंधा हितबो जेमति ता भितरे आउ नुवा चाहिले पेज जेमति ऐड करी होतबो तो सेथिरे कोन रखबे ना फर्स्ट जो दिटा पेज रे गोटे प्रथम पेज रे ऊपर तो हेडिंग रहइबो जे एटा पोर्टफोलियो तार ना कहार पोर्टफोलियो रेडी करा हिची तार मेल आईडी जदी अछि सेथिरे थिबो जोटा वेब पेज त माने पोर्टफोलियो पेज टी भी वेब रे अपन रखि परिबे बोली भी कहउछ जोटा सहज रे पाई परिबे माने एंड देन तापरे इंडेक्स रहइबो बा सूची पत्र गोटे रहइबो तो तापरे जो फर्स्ट आइटम रहइबो सेटा 2 पेज भितरे सीमित रहइबो सेटा होछि आपनकर पर्सनल एजुकेशनल डाटा जोटा रहइबो रिज्यूम जोटा रिज्यूम रो कथा कहले सेटा कोन हबो ना पोर्टफोलियो मेड ब्रीफ पोर्टफोलियो को ब्रीफली लिखा हितबो मैक्सिमम 2 पेज रे आपनकर वीकनेस स्ट्रेंथ अचीवमेंट पर्सनल डिटेल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड देन जो करियर रिलेटेड कांसेप्ट अचीवमेंट्स अपन को करिकुलर एक्टिविटीज रे स्कूल रे कॉलेज लेवल रे कोठी केते बळे फर्स्ट हितले गोल्ड मेडल पाइथिले बा स्पोर्ट्स रे हला अन्य एक्टिविटीज एनजीओ लेवल एक्टिविटीज हला अपन केते बळे कोठी गोटा मिलछि अपन विभिन्न ब्लड डोनेट करिसथि अपन दि चार थरे ब्लड डोनेशन रो सर्टिफिकेट अपन पाखरे अछि अपन देखा जातु सेटा गोटा सोशल रिस्पांसिबिलिटी रो कथा जदि अपन सेटा रखुचंती पोर्टफोलियो रे जे एम्प्लॉयर अपन को रखिबो हायर करिवो से जानिबो जे अपन गोटे सोशल रिस्पांसिबिलिटी अछि नले बहुत लोक अछंती समस्त ब्लड डोनेट करियो को जाउनांती तो ब्लड डोनेशन कला बेले को हमको गोटे सर्टिफिकेट मिले तो से सर्टिफिकेट रे अपन सेटा कॉम्पिटेंस से रखंतु से पोर्टफोलियो रे दैट सजेस्ट दैट यू आर सोशली रिस्पांसिबल अपन जो सोशल क्वालिटी से माने खोजिबे सेटा सफिशिएंट समान पय काम करिवो त से भलिया अपन स्कूल रे कॉलेज रे बा अन्य सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन रे कोठी केते बेले कोन काम करिसंती बा जदि सेठी अपन को काम को प्रशंसा करा हिची अपन को सर्टिफिकेट दिया हिची अपन किछि मानपत्र उपढौकन मिलिची से गुडा कभी अपन इन जेरेक्स जदि रखि करूचंती जदि अपन केबे कोठ गोटे लेखा प्रकाश करिसंती केते कहार किछि लेखा बाहरिची कोठी स्टेट लेवल प्लेयर हेकरी कोठी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर हेकरी कोठी स्कूल रु बा यूनिवर्सिटी तरफ रु कॉलेज तरफ रु अपन कोठी खेलिचंती जाईकरी और तार सर्टिफिकेट्स अछि अपन पाखरे ताकू भी रखंतु पोर्टफोलियो रे अपन भलो गीत गाई पारंती भलो नाटक करि पारंती तो से गुडा कर जदि फोटो संभव हे परुछि ताले फोटो फीचर देखि बा से गुडा न्यूज रे बाहर छि जो पेपर पेपर रे अपन केते बडा गुटा कोछि असाधारण दक्षता बा ये को एक्नॉलेज करा हे छि पेपर रे न्यूज हे कि बाहर छि अपन विषय रे तो सेटा को भी अपन कैटेगरी से पोर्टफोलियो रे रखि परिबे सो दैट विल गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव आईडिया से जेमति कोछि गोटे लाइन रे कहले दैट इज व्हाट वी कॉल ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कैलिबर एंड कॉम्पिटेंसी अपन कैलिबर कैपेसिटी दक्षता क्षमता बा अपन जो टोटालिटी अच्छी पर्सनालिटी अच्छी ताकू गोटे विजुअल फॉर्म रे रिप्रेजेंट करबा होची पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो को हमें नेट बेस बा वेब पोर्टफोलियो भी मिलुची ताकू अपन रखि परिबे सो दैट सेथरे कोन हबो ना सेथरे मेंशन करथिले अपन ये रे से माने तांको फुर्सत रे जेतु से माने हमें जो कंपनी पर खोजिबा जो जॉब सीकर मान पर खोजिबा जो हम जॉब खोजिबा खोजिबा जो माने हमको जॉब देबे से माने बिजी लोक से माने पय हमें केवल एकमात्र ऑप्शन नो
तो से माने तांको सुविधा हमको देखि परिबे शॉर्टलिस्ट करि परिबे पोर्टफोलियो हेले हमरो सबुतक क्वालिटीज हम जेमति कहू जो थीसिस जेमति कहल माने सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रोफेशनल कैलिबर एवं आपनकर पर्सनल डाटा ये तीनटा जिनस को से माने एका समय रे देखि परिबे तीनटा जक को कॉम्प्रिहेंसिवली अपन गोटे फॉर्मेट रे रखि करी जदि प्रेजेंट करते सेटा होची पोर्टफोलियो से पोर्टफोलियो रो डिटेल रे अपन पोर्टफोलियो मेकिंग सिखले এবং या পরে নেক্সট দুটা जो चैप्टर अछि से दुटा चैप्टर रे अछि राइटिंग योर सीवी करिकुलम ভিটি বা जो रेज्यूम अछि हम केमति निज विषय रे लिखिबा काली सीटा हम डिस्कशन करबा एंड प्रिपेयरिंग टू फेस एन इंटरव्यू काली अछि दुटा जिंस देखिबा इंटरव्यू पई आज जो नॉलेज अपन को नेले बैकग्राउंड नॉलेज हिसाब रे जाऊ अपन काली किछि मनर क्वेश्चन किछि बाची करी आसो जदि इंटरव्यू रे एभळा क्वेश्चन किछि पचारले ताले हम कोन आंसर दबा हम कोन आंसर हे परिबो लाइक वाइज अपन जदि मनो किछि क्वेश्चन आसुची काटो सुनी चोते इंटरव्यू क्वेश्चन एमति भी जति कहला बेले कुछ मोर संग माने एमति अछंती बा मु देखिछि बळा इंटरव्यू क्वेश्चंस पचरा होची बळा हेची जदि अपन पाखरे से बळा किछि सुविधा भी अछि यू कैन कम प्रिपेयर्ड विथ जदि बही नाही ताहले भी अपन डाउनलोड करि करी बही टिके देखि करी आसी परले अपन गाउ टिके सुविधा हबो जनरली जानिया पई कारण ई जो जिंसटी हमें डिस्कशन करबा होते एई भली भाबरे अन्य को बही रे अपन को मिलिबो नै जे इंटरव्यू कोन कोठी इंटरव्यू शब्दर अर्थ कौन इंटरव्यू गला बेले आम कौन कौन करके जीवा उचित ये कथा आम काली डिस्कशन करबा से अच्छी एंड तो कहीं किसी पचार ना तो दिस आम आज टॉक को ये रखा जदि कहार किसी क्वेश्चन अच्छी एबे भी पचारि पारंतु एनी क्वेश्चन सो ताले कल क्लास एटी सरीला आज पई काली आम पुणी कथा हवा and write curriculum vitae was CV writing and then facing an interview board. Thank you. Thank you, sir.